broadcast with this breaking news coming in. Looks like there is a race going on in the Congress party to make statements that are pro-Pakistan. Another Congress leader defends Pakistan. Pro-Pak lobby continues to defend the terror nation, and this time it's Saifuddin Soz, who has already given a clean chit to Pakistan. Let's listen into what Saifuddin Soz said. Pakistan is a lifeline because irrigation and drinking water and rivers have to flow towards Pakistan, and I have a feeling that the water cannot be diverted. It can create, firstly, Punjab and Jammu and Kashmir will be totally submerged. So Indus Water Treaty has survived the wars between India and Pakistan. And I have a feeling that better sense will prevail, and Pakistan's word should be accepted. We have Sagarika joining us in the broadcast. Looks like Saifuddin Soz is more concerned about lifeline of Pakistan than the Indian lives lost. Absolutely. And Swati, this is not just one Congress leader. Leader after leader over the last few days have taken a very soft stand. Today you heard how the Congress chief of Jammu and Kashmir first said, talk to Pakistan. And now it's Saifuddin Soz, a former union minister. He goes on to say that if Pakistan is saying it has no role in Pahalgam, then trust them. There's a mountain of evidence against Pakistan-backed terror. And here we are talking about 26 Indian lives, 26 lives that are lost. So the Bharatiya Janata Party has responded to what Saifuddin Soz has said. Bharatiya Janata Party says, and I quote, it's Amit Malviya of the BJP who says, Saifuddin Soz, a former union minister and senior Congress leader, wants India to ignore all evidence of Pakistan's involvement in the Pahalgam massacre and simply accept Pakistan's word. He has most certainly exceeded even the expectations of Pakistani deep state with such brazen advocacy. So one after the other, leaders of the Congress party making these comments, which the BJP says is pro-Pakistan. In the case of Saifuddin Soz, the BJP is condemning it by saying that Saifuddin Soz has most certainly even exceeded the expectations of Pakistani deep state with brazen advocacy. All right, Saga, thank you for getting us the details. Let me also bring in Pragya. Of course, BJP is condemning these reactions and also hitting out at the Congress leaders. BJP says this is how Pakistan is being provided a long rope cover fire by Congress netas. Well, you are absolutely on this count, and I would say that BJP has got a handle and also something on a platter that Congress has provided to say that there are people in this country who are pro-Pakistan to a level where they refuse to see the terror that has been perpetrated by Pakistan on our soil and in our country. At a time when the emotions are very high against this Pahalgam terror attack, a time when government is ready to have onslaught on Pakistan for perpetrating this terror, on every count, be it diplomacy, be it any physical strike or planning of it, or be, ensuring that the borders at least are safe and ensuring that Pakistan won't get any aid from India as such from now onwards. In fact, BJP leaders are saying that we are correcting the mistakes of past governments and ensuring that we first think of our own people at a time like this when any of the former Congress union minister says that we should take Pakistan's word on the face value. It is also... All right, Pragya, stay on with us. We also have Mr. Saifuddin Soz joining us on the broadcast. Saifuddin Soz साहब, आपका रिएक्शन हमने सुना. उसमें सुनकर के ऐसा लग रहा है कि आपको पाकिस्तान की ज्यादा चिंता, और इतना सब होने के बाद भी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर विश्वास करें, ट्रस्ट करें. नहीं, मैंने नहीं कहा. ये आपकी बोली है. मैंने तो सिंपल कह दिया. मैंने कहा अपने हुकूक के लिए लड़ना चाहिए. जहां आपको नजर आता है, जहां भारत को नजर आता है पाकिस्तान ने गलत किया, वहां आप जरूर अपनी बात कहिए. मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि जो महात्मा गांधी के वक्त से, जवाहरलाल नेहरू के वक्त, सरदार पटेल के वक्त से एक चीज तय है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो हमसाया ममालिक हैं, और
ये हमसाई की ये खत्म नहीं कर सकते हैं। नहीं, एक सेकंड, अगर पाकिस्तान वहां से लगातार आतंकवादी भेजता रहे, हमारे लोगों को मारता रहे, बात नहीं, वो आपको एक्सेप्टेबल है? तब आपको आप सुनिए पूरी बात। आप तशद्दुद को, टेररिज्म को कंडेम कीजिए, जितनी ताकत आपकी है उसमें मैं आपके साथ हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान हमेशा नेबर रहेंगे और नेबरहुड को नहीं बदला जा सकता। और मैं प्रार्थना करता हूं कि दोनों मुल्क नहीं, एक अपनी मिनट हमसाई सैफुद्दीन की सोज हक साहब, अदा आप करें। सुनिए, आप चाहें तो मैं आपका बयान आपको दोबारा सुनवा दूं, बशर्ते आप फोन ना कट करें, जिसमें आप कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान कह रहा है कि वो इन्वॉल्व नहीं है तो हमें उनको ट्रस्ट करना चाहिए, बावजूद इसके कि वहां से नहीं, टेररिस्ट आते हैं, हमारे लोगों को मार देते हैं। देखो एक बात क्या कहते हैं, आपका पूरा हक है, पाकिस्तान को आप समझते हैं दुश्मन है, पाकिस्तान को आप पहलगाम के बारे में कहते हैं, पाकिस्तान नकारता है उसको। पाकिस्तान ने कहा, मैंने खुद सुना उनकी तरफ से जो 2 बयान तो आए, पाकिस्तान तो उन्होंने सर कहा, कहेगा ही हम नहीं, तो पाकिस्तान तो कहेगा ही, हर हमले के बाद पाकिस्तान ने यही कहा है। पूरी सुनिए, मैं भारत की बात करूंगा। मैं ये कहता हूं पाकिस्तान ने कहा कि हम इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन भारत के पास वो जराया है कि आपको सच्चाई का पता चलेगा, सच्चाई के मुताबिक भारत रिएक्ट करेगा। तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, वो तो जायज बात है हाँ। कि भारत का जो स्टैंड है उस पर वो बोलेंगे, उसकी हिमायत करेंगे, उस पर किसी को इतराज नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अल्टीमेटली भारत और पाकिस्तान 2 हमसाया ममालिक हैं, इसलिए हमसायगी को आप हटा नहीं सकते हैं। लेकिन सोच साहब, हमारे रास्ते तो तभी अलग हो गए थे जब पार्टीशन हो गया था, हमारे रास्ते तो तभी अलग हो गए थे, हमारी किस्मत भी तभी अलग हो गई थी। हमसाए अब भूगोल देखिए, हम ज्योग्राफी को बदल नहीं सकते सोच साहब, इफ दैट इज व्हाट यू मीन। यस, वी कैन नॉट चेंज द ज्योग्राफी, है वो हमारे नेबर, बट दैट डज नॉट मीन दैट वी नीड टू कीप गुड रिलेशंस विद देम जस्ट बिकॉज दे आर आवर नेबर एंड दे कैन कंटिन्यू टू सेंड टेररिस्ट। मैं आपको किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ पाकिस्तान भारत का हमसाया मुल्क है, ये हमसायगी तो हमेशा रहेगी, इसको कोई बदल नहीं सकता है। जहां भारत को लगता है, मतलब पहलगाम में आपको लगता है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, नहीं, हमें लगने नहीं लगने की बात नहीं है, अगर ऐसा है तो उसको मानने में दिक्कत क्या है सोच साहब? पाकिस्तान इसके पीछे इन्वॉल्व है, इसको ठोस तरीके से बोलने में क्या दिक्कत है? इसमें हम अगर मगर को क्यों जोड़ देते हैं? नहीं, सुनिए, मैं कहता हूँ मेरा मुल्क, मेरा प्राइम मिनिस्टर ये कहता है पाकिस्तान जिम्मेदार है, तो मैं उसमें तरदीद नहीं करता। हाँ। मैं तो जो प्राइम मिनिस्टर बोलता है वो हमारे मुल्क का लीडर है, जो बोलता है सही बोलता है, मैं उसमें नहीं कहता हूँ। हाँ। मगर मैं ये कहता हूँ जैसा गांधी जी के वक्त में सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू उनने तस्लीम किया, कुछ भी हो पाकिस्तान हमारा नेबर है, तो नेबरहुड तो रहेगा, बस इतना ही कहता हूँ। नहीं, नेबर रहेगा, उसमें कोई, अब भूगोल, वी कैन नॉट चेंज ज्योग्राफी लाइक आई सेड, लेकिन क्या इसका मतलब है कि उसको लीवे दिया जाए, बार बार वो आकर के हमारे देश में आतंक फैलाए और हम कुछ ना कहें क्योंकि हमारा नेबर है तो हमको हमसाया बन करके रहना? ऐसा तो नहीं, ऐसा जब आप कहते हैं तो नहीं, एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप बहुत सीनियर नेता हैं, जब आप इस तरह की बात करते हैं तो यही संदेश जाता है कि everything Pakistan can do, and one second, Pakistan can do everything and get away with it because ultimately हमारा नेबर है। ये गलत नहीं है आपके हिसाब से? ये तो आप कहते हैं, मैंने कहा कि पाकिस्तान should get away with it। मैं कब कहता हूँ? मैं कहता हूँ भारत को यह हक है, जो उनको सच नजर आता है सामने, उस पर प्राइम मिनिस्टर ने बोला है। हाँ। मुझे उसमें कोई आपत्ति कैसे होगी? वो तो नहीं है। नहीं, तो अब आगे आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्योंकि देखिए देश भर से मांग आ रही है कि ऐसा कदम उठाइए, ऐसा सबक सिखाइए कि दोबारा ये घटना ना हो। आपको क्या लगता है? एक बात है, देखिए, इंडिया जो भी कदम उठाएगा उसके लिए काबीना फैसला करेगी, हमारी पार्लियामेंट है, इसलिए हम हिंदुस्तान कोई मामूली मुल्क नहीं, हमारे पास जमहूरी निजाम है, वी आर अ डेमोक्रेसी, हमारे पास अदारे हैं, पार्लियामेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है और खुद कैबिनेट है। तो कैबिनेट का जो फैसला है सारे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए कबूल है, इसमें मैं शामिल हूं। तो लिहाजा जो प्राइम मिनिस्टर कहता है वो हमारे लिए, सारे सिटीजन के लिए वही ठीक है जो प्राइम मिनिस्टर।
सैफुद्दीन समझता सोज साहब, कुछ लोग अब आपकी उस- पार्टी के ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत कीजिए, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, वो देखिए, वो ब्रॉडर कंटेक्स्ट में कहता हूँ, आज नहीं तो कल पाकिस्तान हिंदुस्तान का नेबर है, बात करना पड़ेगी। क्यों सर? क्योंकि इसलिए कि बातचीत का दरवाजा, डायलॉग जो है हमेशा ठीक रहता है। नहीं नहीं, जब बातचीत का नेशन दरवाजा की- खुला था सोज साहब, और आप तो गवाह हैं, आपने देखा इतिहास में क्या क्या हुआ है, जब दरवाजा खुला था बातचीत का, डायलॉग हो रहा था, तब क्या पाकिस्तान बाज आ गया था? तब भी हम आतंक का शिकार थे, देखिए, हम आज भी आतंक का शिकार है। नहीं, तो क्या इसको आप अपनी देखिए, किस्मत मान के बैठ जाएं? सुनिए, मैं कोई फौजी महाज पर थोड़ा हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं अपनी सोच के मुताबिक आपको जवाब बताता हूँ। बातचीत का दरवाजा खुला रखना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है डायलॉग एंड डिस्कशन, उसी से मसले हल होते हैं। बट हाउ कैन सर डायलॉग एंड टेरर गो टुगेदर? आप पाकिस्तान में किससे बात करिएगा, किससे आप बात करिएगा? वो तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। आप हुकूमत से वहां बात करिएगा जो कहती है कि अरे ये लोग तो शायद फ्रीडम फाइटर थे, आप हुकूमत से बात करिएगा, या डिफेंस मिनिस्टर से बात करिएगा जो कहते हैं वी बीन डूइंग द डर्टी जॉब ऑफ यूएस फॉर 3 decades, जो खुलेआम इसको कबूल कर रहे हैं। किससे बात करिएगा? वो तो नहीं, ये तो आपको हक है एज एन इंडियन सिटीजन ये बोलने का। मैं तो इसका खैर मकदम करता हूँ, आप जो बोलते हैं सही है। मेरे मुल्क का वजीर आजम जो तबसरा करता है अपनी सोच के मुताबिक, वो सब नेशन की सोच है, मैं उसको मानता हूँ। मोदी जी को आज के दिन जो नजर आता है, वो जो कदम उठाएंगे उसमें हम सब शरीक हैं। मेरा मतलब है थ्योरेटिकली, पॉलिटिकली सबसे बेहतर है डायलॉग एंड डिस्कशन। अरे सर, ये तो बहुत, ये देखिए, ये तो बहुत किताबी बातें हो गई, ये तो बहुत किताबी बातें हो गई। और जिस तरह के बयान हम लोग यहाँ देते हैं, हमें लगता है कि शायद इसका कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन इसी तरह के बयान पाकिस्तानी मीडिया और चैनल उसको उठाता है, वहां डिस्कशन करता है, अपने डिस्कशंस में कहता है कि चलो सिर्फ मोदी ही तो हमारे खिलाफ है, बाकी देखिए ऑपोजिशन तो हमारे साथ खड़ा है। फिर चुनिंदा नेताओं के नाम लिए जाते हैं, उनके बयान सुनवाए जाते हैं, और एक मैसेज ऐसा जाता है कि देश में ही देखिए कितना डिवीजन है। सोच उनकी वो सोच गलत है। हमारे लिए, अपने नेशन के लिए, हमारा नेशन का लीडर है वजीर आजम की जो सोच है वो सबकी सोच है हिंदुस्तान में। वजह क्या है कि चलिए सैफुद्दीन सोज जी, जुबान कौन है? वजीर आजम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे हमारी- बात करने के लिए, शुक्रिया।